जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। तो फिर आराम करते हैं वीडियो दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। And Vivek Srivastava ji just cannot, begin to answer without using the word Adolf Hitler. Good evening, Pranesh. First of all, my commiserations to my good friend and comrade Vivek, because the CPIM in Haryana has got less votes than Nota. So sorry about that, Vivek. I'm sure you'll do much better, at least in JNU. No, look, coming back to this topic. Pranesh, let me be honest here. Whatever Trump says has to be taken with a mountain of salt, not just a pinch. And even here, if he's talking of Pakistan, then I doubt if Prime Minister Modi would have used the phrase hundreds of years, given that Pakistan was created only 75 years ago. Anyhow, if the crux of what Trump says is true, then surely it conforms to what we have been witnessing. A new confident India under Modi, especially regarding our foreign policy. Remember, Pranesh, Air Chief Dhanoa is on record saying that the Indian Air Force wanted to bomb terror hideouts in Pakistan in the wake of 26/11, but was forbidden to do so by Manmohan Singh. Remember also that India rewarded Pakistan for their 2008 dastardly attack on our embassy in Kabul by capitulating miserably in the Sharm el-Sheikh Declaration, acquiescing that Pakistan could blame us for its Balochistan troubles. And a decade after that, please remember that Pakistan remained our most favored nation to trade. Look, a lot has changed since then. I think the time has come for us to realize that we are what we are and what we are going to be because of hard power and not soft power. Doubtless, it is great whenever India gets recognized as a soft power. Dance, music, culture, knowledge, maths, religions. No one has gifted more to the world than India. But it is also a fact, Pranesh, that soft power goes hand in hand with hard power. You know which country is ranked #1 in Portland Soft Power Index? A country barely 200 years old, USA. And yet it is #1 soft power. Fact is, India was a soft power center when it was also a hard power center. Once it was colonized, subjugated, its soft power reached also collapsed. Little changed even after independence. India has forever had a shambolic foreign policy because of which we've always been made to sit on a rickety stool adjacent to the big table. We must now drag a chair and sit alongside the powers that are. Finally, we are seeing the face of new India. But many people are not too pleased with what Trump said about Prime Minister Modi. Tuhin, before I get you in, a quick comment from Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, how would you answer the question I asked Vivek Srivastava? जो लाल आंख बोला था कुछ और 56 इंच jokes. Here is the former US president describing what transpired. Pranesh, let me read out a comment by another US president. The comment is, a gentle, soft-spoken economist in his 70s with a white beard and a turban that were marks of his faith, but to the Western eye lent him the air of a holy man. I would find Singh to be wise, thoughtful, scrupulously honest, and we developed a fine relationship. This is Barack Obama on Prime Minister Manmohan Singh. So what I would say is, over a period of time after India became independent, US presidents have always spoken highly of Indian prime ministers. They have revered the country. They know that India is strategically located and they do not want to tamper in any way the bilateral relations. I do not see any political weight in the statement. No, it's more about the personality, less about the bilateral relations. What is your takeaway from what Trump has said about Modi? Well, Pranesh, what I see over here is another attempt by Donald Trump to make sure that India, which is right now strategically located, Donald Trump is in good books of India, and he is only serving his own purpose. Okay. There's nothing that he is doing Tuhin Sinha, in any way. Respond to what you heard from Vivek Srivastava and Lokesh Jindal. Dr. Ranganathan is showing something on screen. Well, good evening, Pranesh. Good evening, everybody. You know, both Prime Minister Yeah, just Modi 1 minute. Tuhin, I'm sorry, Dr. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। आप क्या सोचते हैं वीडियो के ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उससे पहले मैं बोल देता हूँ क्या मेरा सोच क्या है। एक यूएस का एक पॉडकास्टर है और कॉमेडियन भी है, स्टाइल्ड कॉमेडियन, उसका नाम एंड्रू शल्स है। उसका एक चैनल है फ्लैग्रेंट नाम का। वो कॉमेडियंस बैठ के बात करते हैं, बहुत सारी कॉमिक्स है उधर, स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बात करते हैं। और एक आकाश सिंह नाम का भी है, वो दोनों बैठ के डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू मतलब पॉडकास्ट में बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनफॉर्मल तरीके से। और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया। तो फिर उससे पहले आप लोगों को तो पता ही होगा यूएसए में इलेक्शन होने वाला है अभी, जो नवंबर 6 को उनका इलेक्शन का वोटिंग डेट है। वोटिंग होने के बाद फिर उनका रिजल्ट्स भी आएगा काउंटिंग डे में। तो फिर अभी उधर जो चल रहा है इलेक्शन, तो आप लोगों को पता ही होगा। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप अपना जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उनके ऊपर, एक लड़के ने किया था। सबसे पहले स्नाइपर लेके आया था, वो रूफ टॉप में बैठ के पूरी तरह मारने की कोशिश किया था डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी टाइप में एक लेफ्ट विंग का क्रेजी नट केस जो यूक्रेन का जो वॉर है उसको सपोर्ट करता है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, हेट्स रशिया। और डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को पता ही होगा कि उनका जो प्लेटफॉर्म है इट्स नॉट एंटी रशिया, इट्स प्रो अमेरिका। और वो बोलते हैं कि जो भी वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, जो अमेरिका उसके ऊपर है, अमेरिका का भी एक हाथ है, उन सब वॉर से मैं पीछे हटूँगा और जो भी ट्रूप्स होंगे उधर उनको भी लेके वापस आऊँगा। और उनका एक स्लोगन है पीस ट्रूथ स्ट्रेंथ, शक्ति के अभाव से शांति, शांति में शक्ति के अभाव से लेके आऊँगा। ये उनका एक स्लोगन है और बहुत फेमस सा स्लोगन है। सारे डिबेट्स में जो अभी तक सबसे पहले जो बाइडेन के अगेंस्ट डिबेट हुआ था उस टाइम भी बोला था, और ये कमला हैरिस के अगेंस्ट जो डिबेट हुआ था उधर भी बोला था। ये आइसोलेशनिस्ट नहीं है, पर इनको वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप लोगों को पता होगा यूएस इलेक्टोरेट में और यूएस के जो लोग हैं उनको वॉर बहुत पसंद नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वॉर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो रोज़ी रोटी है उस वॉर के कारण ही चलता है। और अभी जो एंटी वॉर पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी बन चुका है। पहले तो रिपब्लिकन पार्टी वाज द वॉर पार्टी। की पार्टी में ही जो भी डेमोक्रेट, जो भी क्रेज़ी न्यू कंजर्वेटिव्स होते थे वो पूरी तरह वॉर को सपोर्ट करते थे। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वैसे नहीं है। और धीरे धीरे उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। अभी पहले जब कमला हैरिस अपना जो एक बुनियादी, तो फिर ये बात तो है ही कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इक्वेशन है कमला हैरिस और उनके कैंपेन के साथ वो बिल्कुल सही नहीं है। और इलेक्शन तो अभी चल रहा है, पर इलेक्शन से पहले आप लोगों को तो पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, पर जो बाइडेन को ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि उनका जो डिबेट का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल वाहियात परफॉर्मेंस था। उस परफॉर्मेंस में वो उनका जो एज का एलिमेंट्स थे जैसे एमनीशिया, डिमेंशिया और जो भी उनका याददाश्त का प्रॉब्लम था, ये सब दिखाई दे रहा था कि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी क्विक है बिल्कुल, उनका जो भी हाजिर जवाब है, तो फिर उनका कोई एज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर उसके बाद कमला हैरिस को लेके, यार कमला हैरिस को बहुत 2-3 हफ्ते एक हनीमून पीरियड भी मिला और मीडिया तो उनके साथ है ही, पूरी यूएस मीडिया तो उनकी साष्टांग प्रणाम कर रही है। जो असली यूएस मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो बोला था ना, टॉकिंग ट्रूथ टू पावर, हम पावर के अगेंस्ट बोलते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, उनका क्रिटिकल थिंकिंग की तरह बोलते हैं। पर जब कमला हैरिस अपने कैंपेन में जा रही थी तो फिर उनको क्वेश्चंस ही नहीं पूछ रहे थे, एक सॉफ्ट बॉल क्वेश्चंस पूछते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल चने के जो पेड़ है उसमें लटका के रख दिया है और बोल रहा है कि तुम्हारे के अगेंस्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे। तब की जब भी पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि 4 साल जो गवर्नमेंट में थी अभी वो ये जो डेमोक्रेट
जो बाइडन की गवर्नमेंट थी, और जो बाइडन के गवर्नमेंट में ही कमला हैरिस भी है। कमला हैरिस के का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो जो बाइडन का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो बाइडन का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि उधर महंगाई और वॉर्स ये सब जो बाइडन के कारण ही आए हैं। तो फिर ये सब है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उधर का जो सिचुएशन है वो इट्स नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक कि लोगों को लग रहा है कि अभी वो जीत सकती हैं, और जीतने का एक तरीका भी है। और 2-3 हफ्ते तो चल गया, उनका नंबर्स भी ऊपर जा रहा था, पर अभी धीरे धीरे नेक टू नेक हो गया। और कुछ जो उधर एक इलेक्ट्रल सिस्टम होता है, वो इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अगेंस्ट में 5 स्टेट्स होते हैं, 5-6 स्टेट्स, जहाँ अगर आप जीत गए तो वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स बोलते हैं उधर, तो फिर वो जीत गए तो फिर पूरा देश जीत जाता है। और यही हो रहा है उधर। तो फिर इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी वेरी टफ लीडर, बिल्कुल वुल्फ की तरह है वो, ही इज़ नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ एनी बडी। और जब हमारे पुलवामा में हमारे जो CRPF जवानों के अगेंस्ट अटैक हुआ, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया था नरेंद्र मोदी ने, मेरे ख्याल से बोला था कि मैं इधर ये कुछ करने जा रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर हेल्प चाहिए तो बोलिए आप। तो फिर नरेंद्र मोदी ने बोला कि नहीं नहीं, वी विल फाइट, आई विल फाइट इफ़ नेसेसरी, आई विल डू एनीथिंग पॉसिबल फॉर इंडिया। और 100 सालों हज़ारों सालों से हम उनसे लड़ते आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी बिल्कुल अजीब से लग गया, क्योंकि ये बंदा तो बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन है पर टफ भी है, अभी टफनेस भी दिखाई दे गया। तो फिर यही है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में बोला था ये, और 100 सालों से बोल रहे हैं, तो फिर हज़ारों साल के भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर जो मुग़ल वुग़ल ये सब आए थे, इनके अगेंस्ट भी हम लड़ते ही जा रहे थे। बहुत सारे हमारे जो एरियाज हैं उनको तो सब्जुगेट कर लिया इन लोगों ने, पर तब भी हम हार नहीं मान रहे थे। हमारे मराठा आए, हमारे अहोम्स आए, हमारे विजयनगर एम्पायर आया, हमारे और भी एम्पायर्स आए, कभी भी हमने साष्टांग प्रणाम नहीं किया, हमने घुटने नहीं टेके। घुटने टेकने वाली कौम हम नहीं हैं। पाकिस्तानियों ने घुटने टेके थे 71 में, एक उनका पार्ट था देश का, उसको भी पूरी तरह गवा दिया इन लोगों ने। इंडिया के एक बिल्कुल स्ट्रैटेजिक विक्ट्री और ग्रेट विक्ट्री, 90,000 पाकिस्तानियों को हमने घुटने टेकाए। तो फिर ये सब हमारा एक इतिहास भी बताता है। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये पता नहीं था, पर नरेंद्र मोदी को पता है। एक बिल्कुल गौरव माने, बिल्कुल एक पावरफुल हिस्ट्री हमारा। और नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही है, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, चाइना के अगेंस्ट भी। जब इन लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने हमारे गलवान में अटैक किया था, उसका रिटेलिएशन तो आपको पता ही होगा कि हमने बहुत सारे जो ये गलवान एरिया और जो पैंगोंग सो के एरियाज़ हैं उधर के जो हाइट्स हैं उसको कैप्चर करके रख दिया था हमने। जो पार्ट ऑफ चाइना के पार्ट में जो आता है ना LAC, उधर जाके हम बैठ गए थे वेंटेज पॉइंट में। चाइनीज़ को बोल दिया कि इधर आपके जो एरियाज़ है उसका हमको पूरी तरह पता है, आप कहाँ बैठे हुए हो, हम आपको निस्तनाबूद कर सकते हैं, तो फिर आप ठीक तरह रहिए। तो फिर उसके ऊपर ही नेगोशिएशन इतना ज़्यादा चल रहा है, और हमारे 50-60 हज़ार सैनिक उधर बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं डिप्लॉयमेंट में, और उधर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभी भी। और हमारा जो एक टफ स्टैंड है चाइना के अगेंस्ट, जो वेस्टर्न नेशंस या अमेरिका जैसे स्टेट्स कंट्रीज़ हैं वो इतना टफ नहीं हुए हैं जितना हम टफ हुए हैं चाइना के अगेंस्ट। और चाइना का तो बिल्कुल हमने बाहर बैठा हुआ रखा हुआ है, बोल रहे हैं कि तुम लोग इधर दूसरे देशों में इतना करना है कर लो, पर इधर नहीं कर सकते। हम जो हॉट वॉर है उधर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उधर हमारा एक बहुत सारा एग्रीमेंट्स भी है, और चाइना भी उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है। पर उन्होंने एक बार गलती करके, गलवान की गलती से पता चल गया उन लोगों को उनका। और US तो पता ही है आप लोगों को, कहीं भी जाके अपना उंगली करने लगता है, जैसे बांग्लादेश में किया है, और भी बहुत सारे स्टेट्स में जाके करते रहता है, जैसे ये अफ़गानिस्तान में भी किया था। तो फिर US को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं करिए, सबके साथ शांति से रहिए, ताकि सारे देश ऐसे ही चलते रहें। और डोनाल्ड ट्रंप को जीत लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये इलेक्शन जीत गए तो फिर बहुत सारा जो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे इज़राइल पैलेस्टीन का जो लड़ाई चल रहा है, इज़राइल ईरान का जो लड़ाई चल रहा है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे,
क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि आई विल नॉट एग्जैजरेट ऑल द वर्ड्स, और वो इसराइल को खुली हाथ दे देंगे, बोलेंगे कि तुमको जो भी करना है कर लीजिए, तुमको उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में अटैक करके उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह नल एंड वॉइड करना है, वो भी कर लीजिए। तो फिर ये सब होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए। तो वीडियो को देखिए दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड टेक केयर।